Yes, sir, it is visible. It is visible, sir. So, a very good morning to each one of you. Hope you are having good time. Today we are beginning a new journey into a new year. So, I wish you a very, very happy new year and hope you will enjoy this new session on this New Year Day. Dear friends, today I am going to give you the third lecture. And in fact, roughly speaking, this will take us further deeper into the foundations of density functional theory. So, I hope you will have a fairly good idea after this lecture that what actually goes on at the back of the density functional theory, something which we call as the density functional theory. Now, there are some questions which we want to address after arriving at those equations which we saw on the screen yesterday. First is that we have been talking a lot about single particle wave functions. So the question is how we can link this single particle wave function with many body wave function, capital psi. Then second is which equation the wave function phi I satisfy. Then how to determine total energy of the system in the equation, which is what we describe as the equation of, if you remember the name of this, electronic structure calculations. So this is a fundamental equation which you are looking at. Now when I say that I want to get the total energy, basically I am asking for the calculation of the eigenvalue of this Hamiltonian operator. So when I have to take this eigenvalue, I have to take this eigenvalue over the many body wave function, capital psi, and not over individual phi's. And if you look at it carefully, one can see the trick is very simple. This which I have written here in bracket notation has been further written into the integral form, where we have defined our h as something which you are seeing here. Now, note that the structure of this Hamiltonian doesn't depend on a particular material. अभी हमने material की बात भी नहीं की. Therefore, any change in E must be associated with changes in many body wave functions phi. Now, there is one other thing which you will notice, which we have been telling before us, that this E is a function of psi. And please note this square bracket. That's why we are writing it as psi. If you remember the discussion which we had regarding the definition of functional, this actually shows that the value of E depends upon many values which this psi can take over the range of integration. And the answer which we get is a single number. So we are going from a very interesting idea of a function to functional once again, and you will find that it will keep on recurring again and again and again. If my capital psi is corresponding to the ground state, then this is the total energy of the electronic ground state. Mind it, there is that part which was corresponding to nuclei or ions. We have already taken
iron. I am also keeping this in mind that practically speaking, our understanding of an atom is nucleus surrounded by core electrons, surrounded by the valence electrons. We club these core electrons with the nucleus, and when we try to do that, you can say that this is an entity which is sitting at one place and is stationary. So this is what is our motion. These are only valence electrons which are Romeos and they keep on roaming here and there within the material. Which material I am talking about, I don't need to worry about it at this point of time. अब हम एक बार फिर हमने कुछ चीजें करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम एक नंबर लें, मैंने ये फिर फंक्शनल वाली बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन इसके बारे में आपके दिमाग में ना आए। तो हमारे पास एक इनपुट वैल्यू है x3 gx इक्वल टू cx के लिए सपोज ये 3 थी, हमारे पास gx इक्वल टू 27 आ गया। एक नंबर से एक नंबर की तरफ हम गए। Whereas a functional insert takes a function as an input, and that function can have a range of values, and as a result of those numbers, we are getting an output which is a single number. Now let me try to define functional of this gx itself. Will it be 27? Answer is no. I specify the range. I see that it is sitting inside gx, so that this value of f depends on all the values which this g can take from range 0 to 2. And the answer is very simple. You know how to calculate it. You put 3x here, do the integration, and you will find it will be giving you very simply result equal to 8. Now, there is another set of examples which we can really do to appreciate this aspect. Now, let me come to a very standard example of physics which we really bring in at different places when we want to study different problems in physics. And this system which we often encounter in physics जो हमको बार-बार मिलता है वो है हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो मुझे किसी ने कहा हार्मोनिक ऑसिलेटर की अभी टोटल एनर्जी निकाल के बताओ between 0 and 2 where your psi x, see this is psi x, है ना, ये साधारण psi x नहीं है। Over this range 0 to 2 it is going to take very many values depending upon between 0 and 2 how many points you choose. अगर आपने मान लो 2 पॉइंट चूज कर लिए 0, 1 and 2, फाइन, कोई बात नहीं, वो कर लो आप। और फिर आपको क्या करना है, हमने जैसे ये psi x, we know that this is the wave function of this Schrödinger equation, right? I put it and try to ask myself this question that what will be the result. So you can easily see that how functionals will come into picture and try to influence the results. It is not just going from a number to a number, but it is going from a range of numbers to a single number via a function. अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो सवाल। मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूँ ये देखने के लिए कि कोई डाउट तो नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप बताओ, आई एम विद यू। और ये मैंने प्रेजेंटेशन स्टॉप कर दी so that I can see. Yes. Yes. अगर किसी को पूछना है कुछ तो नहीं सर, आई थिंक सही है। इट्स क्वाइट क्लियर टू एवरीवन द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड इट, सो आई थिंक यू प्रोसीड फर्दर प्लीज सर। Only statement which I want to make is don't treat functional as a function of a function. It is more than that. Right? Yes. We sometimes, you will hear even many a times people who have been using BFT misunderstanding the concept of the functional itself.
This is one of the most misunderstood concepts in the whole field. And you know, to underline it, what we have done, we have a special way of writing a function. G square bracket, inside that something we are writing. Not that we are writing inside the round bracket. This notation wherever you encounter, आप पे एकदम कान खड़े हो जाने चाहिए. यहाँ फंक्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे फंक्शनल की बात. Right, sir. राइट. तो हम चलें आगे. Yes, sir. आप अपने सिस्टम को म्यूट कर लीजिएगा प्लीज. Okay, sir. Okay. Please. So once again, I am trying to go back to the presentation. So here I am, something which I was talking about. And now what I will do is, I will move to the core concept of DFT. Right? And that is where that electron density starts coming into picture. And E, we will find, will be treated as a function of electron density. And what it will do is, it will convert a problem of 3n variables into a problem of something which depends on, please do remember what I am going to say, functional of 3 variables. Huge simplification. Capital N was of the order of Avogadro's number. And we have brought that dependence down to just 3 variables. It's a huge step, giant step in understanding something which is very, very complex. It has been simplified to such an extent that nobody had thought of it before Cohen and Hohenberg. And this happened, as I was telling you, in the 60s. अगर हम 64 देखें तो हम आज 2024 में बैठे हैं. हमारे पास 60 years पास हो चुके हैं जब पहली बार कोहेन एंड होहेनबर्ग ने इस बात की बात करनी शुरू की that ground state energy is a functional of electron density. Please don't forget what is this NR's simple definition. NR is nothing but dependent on the inner product of psi star psi, which we sometimes also try to describe as what? The probability density for finding a particular particle at a particular place. अभी आपने आत्मसात करनी है ये चीज कि हम क्या बात करने की कोशिश करते हैं. अब अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल एनर्जी को लिखने की जब कोशिश की तो हमने अभी भी चार्ज डेंसिटी की बात नहीं करी है बिल्कुल भी. बट व्हाट कोहेन एंड होहेनबर्ग नाउ ब्रिंग ऑन द टेबल इज कि ये जो टोटल एनर्जी है, जैसे हम इसको देख रहे हैं, actually it is a functional of the charge density itself. तो ये बहुत जबरदस्त सिंपल जैसा काम उन्होंने इसके बाद किया. वो क्या काम था? वो काम था कि हम एनर्जी को, जिसको हम ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कहते हैं, उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें. ओके, मगर हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम इसको चार्ज डेंसिटी के फंक्शन की तरह देख रहे हैं तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आती है. अब अगर इसको हम वेव फंक्शन, टोटल मैनी बॉडी वेव फंक्शन के फंक्शनल की तरह देख रहे हैं, then we can also calculate the energy of the excited state only. As far as our density function theory is concerned, we will not really talk very often about it. It is itself a separate topic which we need to discuss later.
basically confines itself for calculating energy of the ground state. But they have also extended these codes, like WASP for example, to even calculate energy of the excited states. So this is something which is happening. Now, when I said that ground state energy is a function of the charge density, this is what is known as Hohenberg-Cohen theorem. और इसका प्रूफ जो है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है और ये हम देख भी रहे हैं. नंबर 1, इन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी nr determines uniquely the external potential of the nuclei. आपने देखा था पॉइसन इक्वेशन जब हमने सॉल्व करी थी, उसके बाद हमने जो एक इलेक्ट्रॉन बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को फील करता है, जो बाकी की चीजों को फील करता है, उसको हमने कंडेंस करने की कोशिश की थी चार्ज डेंसिटी के थ्रू फंक्शनल जो हम निकालने की कोशिश करते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल पोटेंशियल की बात करते हैं, उसके लिए. और ये जो Vn है, ये मिनी इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन को यूनिकली डिटरमिन करता है. एंड इन एनी क्वांटम स्टेट जो टोटल एनर्जी है हमारी, दैट इज ए फंक्शन ऑफ दिस मिनी बॉडी वेव फंक्शन साइन. तो देखिए हमने क्या किया, चार्ज डेंसिटी से स्टार्ट किया, Vn कैलकुलेट करी, फिर उसको हमने साई के साथ कोरिलेट किया, एंड देन वी कैलकुलेटेड एनर्जी. सो दैट दिस इज द पाथ बाय व्हिच वी आइडेंटिफाइड दैट हाउ दिस एनर्जी इज ए फंक्शनल ऑफ द चार्ज डेंसिटी इटसेल्फ. अब इसका हमको प्रूफ देना. प्रूफ देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमने ये पहला पार्ट लिखा. ये लिखने का मतलब क्या है कि हम साई गिवन साई की मदद से, आई होप यू आर एबल टू सी माय कर्सर ऑन द स्क्रीन, विद द हेल्प ऑफ दिस साई वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द टोटल. एंड व्हेन वी से दैट Vn goes to psi, it simply means that if we change the positions of the nuclei of the atomic species, we shall obtain a different many body wave function, which is quite intuitive. अगर पोजीशन चेंज करोगे तो आपकी probability of finding atoms at different places will also change. And how this Vn becomes dependent on n, इसको हमें अंडरस्टैंड करने के लिए Hohenberg-Cohen theorem का प्रूफ देखना पड़ेगा. And that is where things actually then move on. अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि हम ना नोटेशंस डिफाइन करनी शुरू करते हैं, क्योंकि काफी हद तक जो चीजें हैं वो हम सिंबॉलिक फॉर्म में करेंगे. हमको प्रूफ देने वाले नहीं है ऐसा कि हमने कुछ डिराइव करा. तो हमने देखा हमारे पास क्या क्या टर्म्स थी. ये ऑपरेटर T corresponding to kinetic energy, this operator W corresponding to the potential energy between pairs of electrons, और ये जो हाफ यहाँ पे बैठा हुआ है ये डबल काउंटिंग रोकने के लिए हमने यहाँ पे रखा हुआ है. और जो हमारी टोटल एनर्जी है, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ these 3 parts. The expectation value of kinetic energy plus this potential energy, and also the expectation value of the potential seen by each electron out of 1 to capital N electrons. This summation actually goes from I is equal to 1 to capital N. अब जब मैं इसको ऐसे देखने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? मैं देखता हूँ कि ये जो मेरे पास ये फर्स्ट टर्म है इस रिलेशन में, इट हैज एक्चुअली बिकम दिस. ये है यहाँ पे जो nr बैठा हुआ है. ओके, आप अगर देखने की कोशिश करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हाउ दिस इज सिटिंग हियर. एंड देन वी स्टार्ट गिविंग आर्गुमेंट्स which are very interesting arguments corresponding to variational principle,
वेरिएशन प्रिंसिपल जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है, बड़ा इंटरेस्टिंग टूल इस सेंस में है कि जब आपको चीजों का नॉलेज बहुत कम हो, फिर भी उस मिनिमम से आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और वेरिएशन प्रिंसिपल की जो खासियत है वो ये है कि वो हमें उस क्वांटिटी जिसको हम कैलकुलेट करने के लिए ये मेथड यूज कर रहे हैं, उसका मिनिमा हम पता लगा सकते हैं। एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, वेरिएशन प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग ए मिनिमम। आई हैव एनर्जी, I know that it has a plot. I wish to know that where is the minima line. And answer is very simple. If you take the derivative of this function with respect to the independent variable and equate it to 0, you know that where the minima actually lies. वैसे ये extremum problem है, इसको हम maxima भी बोल देते हैं, but you know that once you locate, you can further try to find the value to see whether this is a minima or a maximum. ओके, तो हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम psi is the ground state function for this potential Vn and density n. And let us further suppose that there is another potential which is not equal to this Vn, which gives me the same density n. Okay, but what is happening? हमारे पास एक ना इस तरीके से नया हैमिल्टोनियन बना, क्योंकि हमने Vn की जगह नया V डैश n लगा दिया, तो दैट हैमिल्टोनियन इज दिस H डैश। जब हमने श्रोडिंगर इक्वेशन सिंगल पार्टिकल वाली सॉल्व करी, तो हमारे पास एक नया psi डैश आया, मैनी बॉडी वेव फंक्शन, which definitely depends upon single particle wave function. And when we calculate now using this psi dash, the expectation value of H dash, I am getting a new expectation value E dash. तो क्या ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन बना, क्या ग्राउंड स्टेट एनर्जी आई, क्या हमारा नया हैमिल्टोनियन बना, तो हमने क्लियरली डिफाइन किया। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो साई है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस V डैश n, जिसने हमारे हैमिल्टोनियन को H डैश बनाया, उसकी ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये जो हमारा साई है, ये वाला साई टॉप वाला, वो इसकी ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है जब हमने Vm को V डैश n से रिप्लेस कर दिया। अगर ये ग्राउंड स्टेट को नहीं रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब क्या होएगा? It's very interesting to know that what is the meaning of this. थोड़ी सी यहाँ पे आपको ये इक्वालिटीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो नहीं है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा है, और we are trying to write that in the form of this inequality, where we know that if I look at this and if I look at E, what is the difference? Okay. So I take E, I take this E dash and I try to find out the difference. And the moment I take the difference, you will find that this is turning out to be an integral whose integrand depends on the difference of the two potentials, Vm and Vn dash. They were not equal. What does it mean? It means that this part is not equal to 0. This is non-zero part. Okay. And as a result of this, what we can now further argue. हमने ये कोई assumption तो की नहीं थी external potentials के बारे में. What we can do is we can repeat this entire reasoning by starting from Vn instead of Vn dash in equation this one. और हमें यहाँ पे क्या पता लगेगा कि ये जो हमारे पास E डैश माइनस E हमारे पास जो आया है, ये ऐसे बन रहा है कि अगर हम इन दो टर्म्स को ऐड करें जो हमने पीछे निकाली थी, जो यहाँ पे लिखी हुई है, दिस विल ऑलवेज गिव यू 0 इज ग्रेटर देन 0। ये E माइनस E डैश था,
So it is in zero, it is an absurd result. So then what does it mean? देखिए जो हमने ये बात कही कि हमारे पास दो पोटेंशियल है, उनसे स्टार्ट करके हम चेक करते हैं क्या होने वाला है, वो दो पोटेंशियल अलग अलग नहीं हो सकते. So the premise is that the two different potentials will lead to same ground state energy and is false, and hence in the ground state the electron density determines uniquely the external potential of the nucleus. And here we must remember that the proof depends on the fact that ground state is the lowest possible energy, and the proof will not hold for a generic quantum state. ये हमने इसमें अब ये जो प्रिंसिपल है ये देखने में बड़ा सिंपल जैसा लगता है, बट ये वेरिएशनल प्रिंसिपल के इमेजिनेटिव यूज किया बॉर्न और हाइनबर्ग. तो हमें अगर ये पता लग जाए कि हमारी चार्ज डेंसिटी क्या है, तो हम क्या कह रहे हैं कि उससे हमारे पास एक यूनिक पोटेंशियल आएगा which will give us a unique ground state, and that ground state will be the ground state corresponding to the lowest possible energy. आपको अगर ये समझ में आ गया बड़ी अच्छी बात है. अगर नहीं समझ में आया है, go back, try to read this proof. आपको इसके प्रूफ कई जगह पे मिल जाएंगे, नेट पे जाके ढूंढ लो और डिटेल में जाके पढ़ लो इसको, और ये अप्रिशिएट करने की कोशिश करो जो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is determining uniquely the ground state. Okay, अब इससे क्या हुआ, क्या फायदा हुआ? हम जब DFT की कैलकुलेशन करने बैठते हैं किसी कोड में, तो हमारा सारा का सारा कॉन्फिडेंस और द रिजल्ट ऑफ बॉर्न हाइनबर्ग तो फिर हम अपने पे आते हैं कि लेट अस लुक फॉर सर्टेन अप्रोक्सीमेशंस, और उन अप्रोक्सीमेशंस को लगा करके क्या हम कोई फंक्शनल्स डिफाइन कर सकते हैं जिससे हम कैलकुलेशंस कर सकें. और इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में, इस रेस में दो किस्म की जो अप्रोक्सीमेशन है वो बहुत पॉपुलर है. एक तो है लोकल डेंसिटी अप्रोक्सीमेशन और दूसरी है जनरलाइज्ड ग्रेडियंट अप्रोक्सीमेशन. तो अब हमने जो पीछे चीजें लिखी थी उनको ध्यान से देखने की कोशिश करें, तो हमने देखा कि जो हमारी टोटल ग्राउंड स्टेट एनर्जी थी उसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फंक्शनल की तरह देख सकते हैं, और जो तीन हमारे पास टर्म्स आई थी उन तीन टर्म्स में भी कहां पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बैठी हुई है वो भी हम देखने की कोशिश कर सकते हैं. तो माइंड इट, नाउ आई एम राइटिंग गिवन दिस ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, आई एम सेइंग इट इज अ फंक्शनल ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. If this electron density changes, that means this wave function, which is many-body wave function, will also change. तो अगर हम इसमें देखें, फर्स्ट टर्म जो है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो एक्सप्लिसिटली बैठी हुई है, मगर ये हमें बड़े आराम से कैलकुलेट भी हो जाएगी साई स्टार साई की कैलकुलेशन करके. बट व्हाट अबाउट दीज टू टर्म्स, हमने लिख तो दिया बट दैट एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस इज नॉट एक्चुअली विजिबल. ये ना इंप्लाइड है, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है.
1965 में, ये जो पहला पेपर था वो 1964 में था, उन्होंने बोहन एंड शाम ने प्रपोज किया कि कैसे इन इम्प्लिसिट टर्म्स को फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन लगा करके हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ओके, तो उन्होंने कहा ऐसे देखो, ये जो टर्म यहाँ पे बैठी हुई है, इसका एक पार्ट तो आप समझ लो कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन से आता है, बाकी का जो दूसरा पार्ट है जिसमें हम फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन की बात नहीं कर रहे हैं, जो बाकी की जो चीज बची, उसको हम एक एक्स्ट्रा टर्म की तरह रखेंगे सारे डिस्कशन, ताकि हमें जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन बोल रहे हैं और जिसको हम टोटल इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड करके जो हम आंसर लेना चाहते हैं, ये उसका डिफरेंस की तरह है। एंड दिस therefore brings us to a very interesting split of this total energy functional into different terms. ये हमारे पास टोटल एनर्जी था इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन, यहां से लेके यहां तक। जब मैं इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं, उसका मतलब है मैं उनके आपस में इंटरेक्शन को ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं। तो पहले आया हमारे पास व्हाट डू वी सी एज द एक्सटर्नल पोटेंशियल, व्हाट डू वी सी एज द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द हार्टली एनर्जी, एंड दिस पार्ट इज द एक्सचेंज कोरिलेशन फंक्शन which also depends upon the charges. तो हम ये कहते हैं कि भाई देखो, जो चीजें हमें इंक्लूड करनी चाहिए थी और जो हम नहीं इंक्लूड कर पाए पहली 3 टर्म्स में और इन पहली 3 टर्म्स के द्वारा, वो सारी की सारी जो बाकी की बची कुची चीजें हैं ना, वो इस एक्सचेंज एनर्जी टर्म में बैठी हुई। बट फिर अनफॉर्चुनेटली क्या है कि अभी भी इस पार्ट का हमें पूरी तरह से नॉलेज नहीं। हालांकि हमने प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दिया, वन पार्ट विच इज नोन टू अस एंड द सेकेंड पार्ट अबाउट विच वी आर नॉट वेरी क्लियर व्हाट गोज इनटू इट। हमने नोन और अननोन कंट्रीब्यूशन में चीजों को स्प्लिट कर दिया। ओके, और हमारी वो स्ट्रेटेजी जो हमने पहले लगाई थी हार्टली-फॉक इक्वेशन तक पहुंचने के लिए, तो हम यहां पे भी वही स्ट्रेटेजी लगा करके हम ऐसी इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं जिसके वेव फंक्शन जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस हो। और हम क्या चाहते हैं, इन वेव फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि ये ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन हो। और जब हम इस चीज को करते हैं तो जो हमारी इक्वेशन है जो अभी तक हम ऊपर देख रहे थे, दैट गेट्स रिड्यूस्ड इनटू ए सेट ऑफ इक्वेशंस व्हिच आर नोन एज बोहन-शाम इक्वेशन। आपको ना ये यहाँ पे जो कुछ लिखा जा रहा है, ये कुछ आपको ऐसा लगने लगेगा कि हम ऐसा कुछ बात पहले भी कर रहे थे, हमने ऐसे ही इक्वेशन लिखी थी, बट देन यू विल हैव टू सी दैट व्हाट इज द डिफरेंस हियर। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि ये पार्ट हमने पॉइसन इक्वेशन के थ्रू डिटरमिन कर लिया हुआ है। ये पार्ट हार्टली वाला पार्ट है, ये भी हमको एक्सप्लिसिटली नोन है। द ओनली अननोन थिंग इज रिगार्डिंग द एक्सचेंज कोरिलेशन पोटेंशियल पार्ट ऑफ द होल प्रॉब्लम। ओके, और ये है क्या, जिसको हम एक्सचेंज पोटेंशियल बोल रहे हैं, वो है, ये बता रहा है कि ये हमें बताता है वेरिएशन ऑफ द एक्सचेंज एनर्जी कंट्रीब्यूशन विद डेंसिटी। जब भी हम कोई चीज ऐसे लिखते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वी आर लुकिंग फॉर वेरिएशन ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। ये जो आंसर आता है उसको हम फिर इवेल्युएट करते हैं by putting in the actual charge density with which we initially start. And I hope we have not forgotten this point. किसी भी DFT कैलकुलेशन में हमारे को स्टार्टिंग पॉइंट की तरह
ये जो सिंगल पार्टिकल वेव फंक्शन है इनको एज्यूम करना पड़ता है। जैसे हमने पीछे बात करनी शुरू की थी कि एक कोड है जिसमें हम 3 पार्टिकल वेव फंक्शंस को स्टैटिक वेव फंक्शन की तरह यूज करने लग जाते हैं। कुछ लोग इससे सहमत नहीं, उन्होंने कहा नहीं, इससे एक तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती, कंप्यूटर पे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। So why not really think in terms of some kind of thing which takes care of the whole situation, but is more amenable to doing calculations also. तो ये हमारे पास ये जो कौन-सा इक्वेशन आई बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अब क्वेश्चन आता है, how exact is this theory? इसका आंसर कोहन ने अपने नोबेल लेक्चर में दिया और उसने इसको बड़े इंटरेस्टिंग वे में बताया। उसने कहा कि जो कौन-सा थ्योरी है इसको हम ना फॉर्मल एक्सट्रैक्टिफिकेशन ऑफ हार्टली थ्योरी बोलेंगे। हार्टली थ्योरी में जो इम्प्लिसिट वे में बैठा हुआ था उसको हमने ना एक्सप्लिसिट वे में लाने की कोशिश की और हम ये मान के चल रहे हैं जो हमने कुछ अभी तक किया, हालांकि हमको मालूम नहीं है वो, that if we know exact exchange correlation, then we can find the exact energy also corresponding to that, so that all many body effects get included. And this actually takes us to the functional E exchange. Actually यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट होनी चाहिए, ये नहीं है, sorry for that, but it is a functional only. The practical usefulness of ground state DFT depends on entirely on whether approximations for the functional could be found, which are at the same time sufficiently simple and sufficiently accurate. ये उसने अपने नोबेल लेक्चर में बात रिपीट करी। कितने सालों के बाद उसको नोबेल लेक्चर मिला? ऑलमोस्ट आफ्टर 30 इयर्स। उससे पहले आप मुझसे पूछोगे ये सवाल कि 30 साल तक कोहन और शाम क्या करते रहे? शाम कोहन का स्टूडेंट था, उसने तो अपना रास्ता अलग किया, बट कोहन kept on working in this area. Rather, he kept on talking to people that please use this idea in doing computations and see that what results do you get. तो लोगों ने ना धीरे धीरे इसको अडॉप्ट करने की कोशिश की। जो 90 का दशक है, 1990 to 2000 वाला दशक, उसमें बहुत काम हुआ है कोड्स को डेवलप करने के लिए। ये जो सिएस्टा है ये तो थोड़ा लेट आया, इससे पहले वास्ट था, कास्टेप था और जितने भी इस किस्म के कोड थे जो डीएफटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो धीरे धीरे वो डेवलप हो रहे। और इनमें जो हम स्टार्टिंग वेव फंक्शन इस्तेमाल करते थे वो प्लेन वेव फंक्शन होते थे, और क्योंकि बहुत लार्ज नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं जिनके साथ हमको डील करना है, हमको बहुत ज्यादा स्टार्टिंग वेव फंक्शंस लेने पड़ते थे। और उससे क्या हो जाता था, कोई भी प्रॉब्लम जो हम कंप्यूटर पे करने जा रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हैव मेड इट वेरी वेरी सिंपल, but complexity still remained and it was very time consuming. इसलिए क्या था, जब भी कोहन किसी कॉन्फ्रेंस में जाता था और अपनी इस आइडिया की बात करता था, तो लोग उसको ना थोड़ा शक की दृष्टि से देखते, जैसे स्केप्टिक्स होते हैं ना वैसे उसको देखते। और मैंने आपसे पीछे जब बिगिनिंग के 2 लेक्चर दिए थे, उसमें एक मैंने पॉपल्स का नाम भी लिया था जिसको कोहन के साथ ये नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में, तो उन्होंने शेयर किया था। ये लोग तो अपनी जो इनकी अप्रोच थी उस अप्रोच को लेकर कॉन्फ्रेंसेस में इनके आर्गुमेंट्स बड़े होते थे, और पॉपुलर्स ने तो एक बार खड़े होकर के एक लिस्ट ऑफ रीजंस दे दिए थे कोहन को कि भाई देखो, ये मैं मानता हूं कि ये रीजन जो है, ये जो कमियां हैं उसकी वजह से आपकी थ्योरी ठीक नहीं है ना। ऐसे चैलेंजेस चलते रहते हैं बड़ी स्टेज, और आप देख सकते हो कि कितनी स्ट्रगल कोहन कर रहा इन चीजों
चीजों को कि लोग अडॉप्ट करके चला करके देखें। और फॉर्चुनेटली धीरे धीरे जैसे जैसे कंप्यूटेशनल पावर इंक्रीज हुई, ज्यादा लोग इसमें काम करने लगे, तो हमारे पास एक फंक्शनल नहीं अनेक फंक्शनल है आज की डेट में जिनकी मदद से हम कैलकुलेशंस करते हैं। आपको अरुण बताएंगे कि कितने पॉसिबल फंक्शनल हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको यूज करके हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी को निकाल सकते हैं। ओके, तो अब आप इमेजिन कि दो एक दूसरे के कंपीटिटर मोहन और वो पॉपुलस, वो बड़ी जिसको बोलते हैं ना हीटेड आर्गुमेंट्स करते थे इन चीजों के ऊपर। वो बोलता था ये प्रॉब्लम है आपके कोड के साथ, तो वो बताते थे कि नहीं है, आर्ग्यू करने एक दूसरे के साथ। मोहन यू नो एज ए साइंटिस्ट इज ए वंडरफुल पर्सन। अब तो एक्चुअली पिछले साल या उससे एक साल पहले उनकी डेथ हो गई। इट वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट और बिगनिंग से ही उनका इंटरेस्ट रहा है मेनी बॉडी सिस्टम्स को स्टडी करने का। theoretically, he was basically a theoretical physicist, not a computational physicist. He was not also a chemistry wala person. He was a theoretician and he was actually trained with pioneers of a field called electron gas. डेविड पाइंस है जिनके साथ इन्होंने काफी काम चीज उन्होंने करके दिखाई। लोग ये पूछते थे अच्छा हमें फंक्शनल दो, वो कहते थे मैं आपको एक फंक्शनल तो बड़े आराम से दे सकता हूँ जो मैं फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन पिक्चर में आपको बता दूंगा करके। बट फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन जो है वो पिक्चर जो है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड पिक्चर है, रियलिटी उससे बहुत अलग है। इसलिए मिस्ट्री जैसी है इस एक्सचेंज कोरिलेशन फंक्शन के आसपास। ये मिस्ट्री धीरे धीरे थ्योरेटिशियंस ने काम करके एक्सपेरिमेंट्स किए, जरा ऐसे करके देखो, ये फाइन ट्यूनिंग करके देखो, तो देखो क्या आपके पास रिजल्ट आते हैं। तो आज की डेट तक, मतलब मैं 2024 तक की बात कर रहा हूं, एक खोज चल रही है कि एक्यूरेट एक्सचेंज एंड कोरिलेशन फंक्शंस हमको बता देते हैं। इन सारी दौरों में जो सबसे सिंपल फंक्शनल हमें मिला वो था लोकल डेंसिटी अप्रोक्सीमेशन। ओके, और ये जब हम लोकल डेंसिटी अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं, इन सारी चीजों को टेस्ट करने के लिए फिर ये जो पहुंच वाला ग्रुप था, इन्होंने कहा कि भाई देखो मटेरियल्स तो होते हैं इनहोमोजेनियस इलेक्ट्रॉन गैस वाले, हम क्या करते हैं, हम होमोजेनियस इलेक्ट्रॉन गैस को लेकर के कुछ कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं और फिर हम लोकल डेंसिटी अप्रोक्सीमेशन का जो मीनिंग है, जो फंक्शन हमारे पास आता है, वो हम इसके फंक्शन को इस्तेमाल करके कैलकुलेशन करते हैं। ये जो होमोजेनियस इलेक्ट्रॉन गैस है ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट थी जो हम फ्री इलेक्ट्रॉन गैस की बात करते हैं, क्योंकि इसमें हमने कूलम्ब रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स को इंक्लूड कर लिया हुआ। और जब हम ये फ्री इलेक्ट्रॉन गैस की बात करते हैं, उसके आगे होमोजेनियस इलेक्ट्रॉन गैस की बात करते हैं, उससे आगे इनहोमोजेनियस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो हमने कहा अच्छा एक पार्ट अगर फ्री इलेक्ट्रॉन गैस होती तो क्या होता, हमने कहा एक कांस्टेंट ऐड कर लो। फिर हमने कहा नहीं, होमोजेनियस इलेक्ट्रॉन गैस होगी तो क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर प्रेडिक्शन ने थॉट प्रोसेस चालू किया। इसके बाद एक और सिचुएशन आई, उन्होंने कहा नहीं, होमोजेनियस तक ही हमको सीमित नहीं रहना, वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ इनहोमोजेनियस इलेक्ट्रॉन गैस। अब देखिए फर्क क्या है, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन गैस का मतलब तो होता है कि कोई इंटरेक्शन नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर चार्ज पार्टिकल। होमोजेनियस इलेक्ट्रॉन गैस का मतलब ये है कि उनमें आपस में इंटरेक्शन है, वो हम नकार नहीं सकते, वो तो है ही है,
उसको हम ये नहीं कह सकते इट इज नॉट देयर. कूलम रिपल्शन इज देयर एंड विल ऑलवेज बी. ओके, सो हाउ टू इंक्लूड इट? हमने ये होमोजेनियस इलेक्ट्रॉन गैस के नाम से इंक्लूड कर दिया. एंड देन व्हेन वी वांटेड टू हैव still better things, what we did, we went beyond homogeneous electron gas to talk in terms of really homogeneous electron gases. So this is how, you know, for the first time local density approximation actually appears. Unfortunately or fortunately, homogeneous electron gas के function हमको पता है. अगर जब उससे हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें पता लगता है वो कैलकुलेशन ठीक नहीं आ रही है. नंबर जो है दे आर ऑफ बाय 10%, 15%, 20%. Whereas our effort in adopting these numerical techniques to get some answers was very simple. कि हम ऐसे जो कमियां फ्री इलेक्ट्रॉन गैस की हैं उनको दूर करें. तो इससे क्या एजेंडा एमर्ज करता है? अगर फ्री इलेक्ट्रॉन गैस की बात कर लें तो यू नो दैट फ्री इलेक्ट्रॉन गैस का जो फंक्शन होता है वो ये होता है और जो एनर्जी होती है वो ये होती है. शायद आपको याद भी हो जब आप सॉलिस्टिक फिजिक्स में जाओ तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन गैस से पढ़ाई जाती है. तो मालूम है क्या बताया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन गैस पढ़ाने के बाद? आपको बताया जाता है कि एनर्जी का कर्व क्या आ रहा है और वो कर्व जो है ना दैट इज ए पैराबोला एक्चुअली. Let me just show you on the whiteboard. And yes, the whiteboard. Oh, okay. Here it is. I hope it is visible to you. This is what we get. A versus epsilon graph. Okay. और अगर आप देखेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स की किताबों में ये ना फर्स्ट ट्रिलियन जोन में प्लॉट करके दिखाया जाता है ऐसे. एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर. So if you now see, come here and try to look at what I was telling you. ये देखिए जब मैंने ये सिंगल पार्टिकल वेव फंक्शन लिया तो मेरे पास ये पता लगा दैट एप्सिलॉन k इज प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर बाय 2 एंड इट रिप्रेजेंट्स स्टेशनरी वेव्स विद वेव वेक्टर्स k. और जो आइगन वैल्यूज हैं वो दोज आर द वैल्यूज ऑफ द highest occupied state in the Fermi energy. And Fermi energy is related with the Fermi wave vector once again via the relation where we replace this k by the Fermi wave vector itself. I hope you are very much familiar with these terminologies in your MSc, and you will be able to see that how this works. तो हम सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ही ले सकते हैं. अब हमारे पास देखो अगर हम कैलकुलेट करें स्मॉल n को kf को तो आप इमीडिएटली यहाँ पे देख सकते हो कि kf actually depends upon m which is nothing but number of electrons per unit volume. और फिर अगर आप एक्सचेंज कोरिलेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो पहली बार ना आपको इसकी डिपेंडेंस n के ऊपर नजर आएगी which is to the power 4/3. Okay, so this is a function which we have been able to calculate. कभी हमारे 2 वीक का प्रोग्राम करें तो उसमें हम ये ना छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करके भी कर सकते हैं. For the time being, I will suggest you go to a good book in solid state physics or condensed matter physics, and you will be able to see these kinds of calculations popping up there. और जो हमारे पास एक कोरिलेशन एनर्जी की जो हम बात कर रहे थे इसका कोई एनालिटिकल एक्सप्रेशन नहीं. इस पे बहुत सारे लोगों ने काम किया राइट फ्रॉम द अर्ली डेज ऑफ डेंसिटी फंक्शन थ्योरी. जैसे सुपरले एंड आर्डर इन्होंने क्वांटम
मोंटे कार्लो मेथड लगा करके एक वैल्यू इसको आप कह सकते हैं फिटेड वैल्यूज हमें निकालते थे। एंड आई होप यू विल सी हियर that when we try to now see in the case space the system, तो केस स्पेस में हमें क्या नजर आता है? केस स्पेस में भी हमें ना एक मिनिमम वॉल्यूम सेल मिलता है जिसको हम रिंगर साइज सेल बोलते हैं। इसको अगर हम कन्वर्ट करें केस स्पेस से रियल स्पेस में, then we get a radius which is known as the Wigner size radius। अब देखो आप यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन लिखा गया है उसमें ना एक पैरामीटर जो काम कर रहा है वो क्या है? RS। कैन यू सी दिस RS पैरामीटर? RS पैरामीटर बेसिकली इज ए रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब मैंने इसको जब नाम दिया कि इट इज ए रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी of the particle to the say potential energy of the particle. I don't remember exactly whether this is up and down or what is, but I'm trying to take you कि अगर potential energy ज्यादा हो जाए तो ये जो RS है ना, ये इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। इसको बढ़ाते जाओ, RS की वैल्यू लेस देन 1 होती चली जाए। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने का मतलब क्या है? दैट आई एम पिनिंग थिंग्स डाउन। काइनेटिक एनर्जी लेस हो रही है। अगर ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो और पोटेंशियल एनर्जी लेस हो तो हमारे पास RS विल बी एक्चुअली कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 1। तो जब भी मैं कोरिलेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तब भी हम देखते हैं कि जो हमारे पास फिटेड इक्वेशंस आई वो ऐसी इक्वेशंस थी जिनमें से एक पार्ट था फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जी corresponding to RS less than 1, and other one for RS greater than equal to 1. Right? और एक इंटरेस्टिंग चीज और इसमें ध्यान में रखने वाली है। मैं शुरू में ना ये आर्गुमेंट लेता रहा हूँ जब मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ कि ये डिफरेंट टर्म्स हमारे हैमिल्टोनियन में बैठी हुई है ना, वो ऐसी हैं कि उनके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है वो हमें मालूम है। और देखने में आता है कि काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, एक्सचेंज एनर्जी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कोरिलेशन एनर्जी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, लगभग आपस में बराबर है। तो आप ना किसी को ये नहीं कह सकते कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ने का मतलब बाकी को भी छोड़ो। तो हम इस बात का ख्याल करते हैं कि हम अनरीजनेबल अप्रोक्सीमेशन ना लें और हम एक्सचेंज एनर्जी को ये मान करके या कोरिलेशन एनर्जी को ये मान करके कि ये स्मॉल है इनको नेग्लेक्ट कर दें, दैट विल नॉट गिव अस द राइट काइंड ऑफ आंसर। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैसेजेस एक्चुअली व्हिच कम from our understanding of things through different models। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो हमने करके दी। Now माइंड इट, ये मेरे पास जो फॉर्मूले आए उसकी मदद से हम देख सकते हैं कि हम डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी को कैसे यूज करेंगे और कैसे पोटेंशियल निकालेंगे। और हमें ये पता है कि जो भी हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पैरामीटर लेकर के आगे कैलकुलेशन करेंगे वो हमें इस बात को दर्शाती है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही आइडियलाइज्ड सिचुएशन में काम कर रहे हैं, रियलिटी उससे बिल्कुल अलग। ओके, बट फिर भी हम क्या है इस ट्रिक को इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहते हैं और हम चाहते हैं कि हम सम और द अदर लोकल डेंसिटी अप्रोक्सीमेशन, जिसको हमने लोकल डेंसिटी बोला, उसको ये मान के चल रहे हैं कि दैट इज ए मैपिंग ऑफ ए रियल सिस्टम टू द इलेक्ट्रॉन गैस। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रीट हम ऐसे कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गैस की बात कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन गैस रियल सिस्टम में क्या क्या चीजें महसूस करती है, कौन कौन से एडिशनल पोटेंशियल हमको पिक्चर में लाने चाहिए वो करती है, किस किस्म की हमको इतना मैपिंग करवाने की जरूरत होती है। यहाँ पे ये वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गैस में, तो रियल सिस्टम
सिस्टम में आप क्या वैल्यू एक्सपेक्ट करते हैं, तो 1-to-1 मैपिंग हम करते हैं। तो हमने ये कहा कि ये रियल मटेरियल की तरह तो है नहीं, बट ये जो मॉडल है इसको हम बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं और खास करके उन एरियाज में जिनमें डेंसिटी स्लोली वेरी करती है, स्लोली वेरी करती है। तो ये यहाँ पे अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे हमने ये पोजीशन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेंसिटी की बात करी हुई है कि अगर पोजीशन यहाँ हो तो क्या लेनी है हमको डेंसिटी, अगर पोजीशन यहाँ हो तो क्या लेनी है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है ना, ये हमें रीजन डिफाइन करते हैं और आप देख रहे हो कि डिफरेंट रीजन में डेंसिटी डिफरेंट हो रही है। मतलब जब आप दिल्ली में गए तो डिफरेंट, शिमला में आए तो डिफरेंट, वो लोकल पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। And that is why we are calling it as local density problem. Very simple but effective situation. ये थोड़े से डिटेल है कि हम कैसे फिर ये मैपिंग करते हैं, एक चीज को लेकर के आगे जाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम जो हमने पीछे अपना फंक्शनल निकाला था उसको यूज करके हम कैसे आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें फिर हमको क्लियर होने लगती हैं। Even when you do not know how to get these kinds of functions, those people who have written the codes, they have made use of all the ideas which were put forward by different faces that they have brought us up। कब कौन से वाली चीज को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, चूज कर लो। और यहाँ पे देखिए, मैं पीछे भी बोल रहा था कि थॉमस, फर्मी, डिराक, स्लेटर, इन्होंने ना अपने अपने तरीके से इन चीजों को देखने की कोशिश की। अभी डिपेंड करता है हम कौन सा तरीका आता है। डेंसिटी फंक्शन थ्योरी में चलती का नाम गाड़ी है। आपको ये देना है कि वो कौन सी चीज आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको रियल मटेरियल के साथ कनेक्ट करवा सके। इसीलिए मैंने इसको बोला चलती का नाम गाड़ी। कौन से मटेरियल के कौन सी चीज जो है वो आपको लगेगा कि काम कर रही है और कौन सी चीज नहीं काम कर रही है। सो देयर इज लॉट ऑफ हिट एंड ट्रायल व्हिच गोस ऑन, बट आज के डेट में हमारे कोड में ना देयर इज अ लार्ज लिस्ट ऑफ फंक्शनल्स व्हिच इज अवेलेबल व्हिच यू कैन यूज। यू कैन आल्सो यूज मिक्स्ड फंक्शनल्स। जैसे आपने पार्टली लोकल डेंसिटी अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल कर लिया और पार्टली कुछ और इस्तेमाल कर लिया, वो इस रेशियो में आप उनके फंक्शनल्स को लेकर के इस्तेमाल कर रहे हो, वो 1:1 भी हो सकती है, 3:4 भी हो सकती है, 4:3 भी हो सकती है। तो हम इसको बोलते हैं वेटेड फंक्शनल्स कि भाई इतने परसेंट ये चीज डाली, इतने परसेंट ये चीज डाली, फिर जो हमारे पास बना वो नया फंक्शनल है। लेट अस यूज इट एंड सी ये काम करता है या नहीं करता। तो ये जो हमारे पास प्रैक्टिकल अप्रोक्सीमेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंगली हम उनको इस्तेमाल करते हैं और कैलकुलेशनें करते हैं। और ये कैलकुलेशनें जो है सारी की सारी क्या होती हैं, सेल्फ कंसिस्टेंट कैलकुलेशन। एंड the strength of this knowledge which we have gained through Kohn-Shah's work can be very interestingly used for doing calculations on the computer the way we used to do in other cases where we wish to find eigenvalues. Those eigenvalue problems can help us a lot in making use of what we have arrived at in doing our calculation. So हम सेल्फ कंसिस्टेंट और कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हैं, हमने डिफाइन कर ली और ये एक हमारे पास फिर एल्गोरिथम वेल हो गई। क्या ओके, पीएनआर क्या है हमारे पास, हमने इनिशियल गैस लिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। ये गैस जब हमने लिया तो इसको हार्ट्री वे में निकालना चाहते हैं या एक्सचेंज वे में निकालना चाहते हैं, है ना। तो ये दोनों
दोनों की कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है एंड बोथ दीज गो हियर इन प्रोवाइडिंग अस द टोटल पोटेंशियल। उसके बाद हम इस पोटेंशियल को लेकर के क्या करते हैं, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट इज ए सिंगल कोन शार्प इक्वेशन व्हिच वी आर कैलकुलेटिंग। देन वी ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुरानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बराबर है या नहीं है, इस पे हमने अपनी आई रखी होती है, उसका डिफरेंस पे ध्यान रखा होता है। एक टॉलरेंस लगाई होती है कैलकुलेशन में कि ये डिफरेंस अगर या इससे कम आ जाए तो भाई कंप्यूटेशन रोक। So this is how we actually look at the density function theory। और सारे के सारे जितने कोड हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, वो बैकग्राउंड में यही थ्योरी है जिसको इस्तेमाल कर। और मजेदार बात ये है कि ये थ्योरी आज जिस किस्म की कंप्यूटेशनल पावर हमको अवेलेबल है, लैपटॉप के बड़े बड़े क्लस्टर्स में इस्तेमाल, और इसको हम यूज करते हैं प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करने के लिए मटेरियल्स की ऑन ए कंप्यूटर लैब। वंस वी आर कन्विंस्ड देयर कि हाँ इस किस्म का मटेरियल जो है वो हमको एक्चुअली बना करके देखना चाहिए क्योंकि ये पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करता है, तब हम वेट लैब में जाकर के वो कैलकुलेशंस वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। Another thing which there is a list of properties which you can calculate with the help of such code. One is equilibrium structures, other is vibrational properties and vibrational spectra. In the case of molecules, binding energy. In the case of solid, cohesive energies. Also we can calculate ionization potential, electronegativity, band structure of metals and semiconductors. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें डेंसिटी फंक्शन थ्योरी ने बहुत रोल प्ले किया। बट इस सारे को करते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हर स्टेप पर जब भी कोई कैलकुलेशन हमारे पास आ रही है, उसको हम बीच बीच में जब हमारे कोड रन कर रहे हैं, आउटपुट आता रहता है, तो आउटपुट के ऊपर हमें एक नजर रखनी पड़ती है कि आउटपुट क्या इंडिकेशन दे रहा है। इज इट पॉसिबल टू सॉल्व दिस इक्वेशन और नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दिस। And also we can study transport properties, we can study magnetic properties, we can study superconductivity and so on, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुपरकंडक्टिविटी में सिचुएशन कैसे बदल जाती है। सुपरकंडक्टिविटी में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कभी इकट्ठा अकेले नहीं घूमता, वो हमेशा पेयर्स में घूमता है ना। और हमने एक सुपरकंडक्टिविटी के केस में कई चीजें ऐसी हैं जिनको हम ध्यान में रखा हुआ है और करने की कोशिश की है। हर चीज पे तो हम महारत नहीं हासिल कर सकते, पर कुछ चीजें हैं जिनके हम बड़े आराम से काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको केस स्टडी के तौर पर बताता हूँ। अरुण इज एक्सपर्ट इन इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर्स। अरुण इज एक्सपर्ट इन कैलकुलेटिंग band structure of metals and semiconductors. Arun is also an expert in calculating optical properties of the materials using density functional theory. He is also very good in calculating transport properties. हमने उसका अभी बिल्कुल जिक्र नहीं किया। जो हमारा सिएस्टा कोड है, इसमें हमारे पास एक पार्ट बिल्ट इन है जो हमें ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करके दे देता है। इट इज नॉट दैट ऑब्वियस, बट थोड़ा सा कोशिश करने पे आप देख सकते हो कि आप कैसे ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट कर सकते हो। जब आई एम सेइंग ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज, तो जैसे हमारे पास कुछ वेल नोन कोएफिशिएंट्स हैं, सीबेक कोएफिशिएंट है जैसे, उसको हम फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं। So these are some of the places where we should try to make use of the skill which you will learn in this particular or you have learned in this particular course। और अगर ये स्किल आपके आ जाए तो आप रिमोट इलाके में बैठे हुए भी, अपने कॉलेज में बैठे हुए भी, एक अच्छे लैपटॉप की मदद से अच्छी कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन जो कि अभी लोगों ने नहीं की हैं, वो ढूंढ सकते हो करने के लिए। एंड यू कैन स्टार्ट योर व्हाट यू कॉल
research from a college itself. If you are in a college, if you are in a university, you may think that there are very many resources available there. Not necessarily. वहाँ पे भी लोगों को struggle करनी पड़ती है. And our group is an example of that, where we didn't have many resources, but हमारे पास ना dream था, बहुत जबरदस्त dream था, जो हमने पाला हुआ था कि नहीं हमको करना ही करना. So I think with this, now you are ready to jump into these possibilities. Theory आपको समझ में आ गई. जो आपको ऐसा लगता था कि हम ब्लैक बॉक्स में बैठ के काम करते हैं, वैसा नहीं है. आप इसको बड़ी इफेक्टिवली यूज कर सकते हो चीजें करने की. और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत हमें ध्यान में रखनी पड़ती है. मैं आपको ना एक पिक्चर दिखाऊंगा अभी, और उस पिक्चर से ना आप जो मॉडल लेना चाहते हो इस सारी स्टोरी का, वो मॉडल आप गैदर कर सकते. Let me see if I have that here somewhere. Sorry, मुझे ना शेयरिंग स्टॉप कर दी मैंने. ओके, let me go here, not here. या ओ यार क्या हो जा रहा है, बाकी स्पीक आउट नहीं दे रहा है मुझे. Okay, let me come here and let me go where? Let me go in my this mobile and try to show you something very interesting. मैंने अभी just for a minute. Please have patience for 1 minute, and then I'll. Okay, yeah, I am there. आज नया वर्ष भी है ना, तो ये जो मैं बात आपको बताने वाला है बड़ी काम आएगी. ये आज ही के दिन के लिए नहीं है, ये लाइफ के लिए है. ओके, तो आई थिंक मेरे पास तो पिक्चर पहुंच गई. लेट मी जस्ट शो यू दैट पिक्चर ऑन स्क्रीन. आपको नजर आ रहा है भाई? जरा सिस्टम के आप पास आके बता दो, नजर आ रहा है? सर आपने शेयर नहीं किया अभी, प्लीज शेयर करिए. ओके, आई विल शेयर जस्ट फॉर अ मिनट. या अभी एक मिनट लगेगा इसको शेयर करने में. वैसे तो 1 मिनट बहुत ज्यादा होता है, सेकंडों में शेयर हो जाएगा. ये इट्स देयर. या can you see it now? Yes, it's visible sir. Now it's visible. Okay, very good. So if it is visible, then I want you to really focus on what is there in this picture. I have divided. First of all, you know what I did was, I came across this very interesting quotation. Your dreams don't work unless you do. अगर आपको ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना है ना, तो आपको काम करना पड़ेगा. और वो काम करने के हमारे अपने अपने रास्ते हो सकते हैं. तो हमने फिर अपने आप से पूछा वो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और उनमें से फिर हमने क्या किया, हमने आइडेंटिफाई करा कि कुछ तो काम करेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे. जैसे एक था आई कैन डू ऑल अलोन. ये काम नहीं करता है. यू कैन नॉट डू एवरीथिंग ऑल अलोन.
कि कई काम ऐसे होते हैं वो हमें मान के चलना पड़ता है कि हमें टीम की तरह हम करते हैं। फिर एक था यहाँ पे नीड एक्शन, हम बोले हाँ बिल्कुल ये बात तो सच्ची है भाई, एक्शन तो चाहिए हमको। फिर ड्रीम्स को हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट इनटू प्लान, ये भी बात ठीक है। ड्रीम्स क्या है हमारे, आइडेंटिफाई भी करने पड़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, मेरा रोल क्या है इसमें, यू क्या करता है, यू हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। और अगर कोई ये बोले कि मैं ये फेल ना हो जाऊं, मैं डरा हुआ ना हूं, ऐसे ड्रीम जो है ना वो भी आपको काम आगे बढ़ाने से रोकते हैं। ये जो हमारे छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, काम को करना, प्लान बनाना, एक्शन दिखाना, और ये नहीं कि मैं खुद कर लूंगा, इस गलत फहमी में ना रहे। अब यहाँ वर्क के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, वो एक रूबी हुए हैं हमारे बहुत बड़े फिलोसफर, उसमें एक बड़ी स्टेटमेंट बोली है, इस स्टेटमेंट को आप याद रखना, इसको लिख लेना। व्हाट यू वांट, मतलब आप जो चाहते हैं, वो जो आप चाहते हैं वो भी आपको चाहता है, उसके बिना नहीं आप कुछ कर सकते, आपको भागीदार बनना पड़ेगा। आप कहते हो कि मुझे जलेबी खानी है, तो जलेबी खाने के लिए ना आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने जलेबी का नाम सुन करके अपने आप को संतुष्ट कर। तो व्हेन यू वांट समथिंग, दैट समथिंग आल्सो वांट्स यू। इट कैन नॉट बी दैट आई हैव नथिंग टू डू विद दैट और मेरा ये काम भी हो जाए, ऐसे होता नहीं। So please do remember this on this New Year day, that your dreams don't work unless you do. गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर में या गवर्नमेंट कॉलेज कुमारवी में मैंने एक बात होती हुई देखी, वो था ड्रीम करना कि मैं कॉलेज पे उस लेवल की वर्कशॉप करवाऊं जो लोग यूनिवर्सिटीज में करते हैं, है ना। तो ये ड्रीम था, तो हमने क्या किया, डर भी था हमको, पता नहीं ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। फिर ये भी था क्या मैं अकेला ही कर लूंगा इसको, फिर पता लगा नहीं, टीम बनाने की कोशिश करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उनको बताने के लिए कि क्या क्या संभावनाएं हैं आपके पास इस पर्टिकुलर एरिया में करने के लिए, आपको उनको कन्विंस भी करना है। और वो ये अपने साथ लेकर के जाए मैसेज कि एक लैपटॉप पर बैठ करके आज आप बहुत ऐसा काम कर सकते हो जिसके लिए आपको बड़ी ताम-झाम की जरूरत नहीं है। एक अच्छा इंटरनेट का वाईफाई कनेक्शन आपको सारी दुनिया के साथ जोड़ के रखे। आई थिंक इट विल बी नाइस टू एंड these sessions with this message. So when you want to do, तो आप एक अपनी जिम्मेवारी समझो और कुछ करने के लिए हमेशा तैयार हो। ये नहीं है कि कोई और आपके लिए कुछ करेगा। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको उसकी जिम्मेवारी खुद लेनी पड़ेगी। अगर आप वो जिम्मेवारी ले लेते हो तो आप समझिए कि चीजें होने लग जाएंगी। अगर आप वो जिम्मेवारी नहीं लोगे तो वो चीजें नहीं होंगी। तो आपको क्या मैसेज लेके जाना है आज न्यू ईयर डे? वो मैसेज ये है कि आप यहाँ पे आए हो ना इस वर्कशॉप में, तो एक बात तो पक्की है कि आपका ड्रीम तो है। ऐसा नहीं है कि आप मेरा ड्रीम की यहाँ बैठे हो, इतना टाइम आपने लगाया है तो ड्रीम तो है ही है, हमारा कुछ करेंगे। अब इस ड्रीम को आप रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आपको कुछ एक्शन करने पड़ेंगे, है ना। बार बार आपको लगेगा कि कुछ चीजें जब आप वापिस आओगे तो चल नहीं रही। अगर वो चल नहीं रही है तो किसके पास है? आपके पास ना एक ग्रुप है जिसके ऊपर आप ना डिपेंड कर सकते हो। यू कैन टॉक टू वेरी मेनी पीपल अराउंड अस, लाइक अरुण इज वन, बीश इज अनदर, अंजना इज आल्सो देयर, these people have lot of experience of working
about nitty-gritties of the codes. कि इस पैरामीटर के साथ क्या होता है, इसको चेंज करें तो क्या होता है, इन्होंने ना वो 6 महीने लगा करके लर्न करी हुई है। तो अगर आपको लगे कि वो आपको चीजें नहीं आ रही हैं, डोंट माइंड राइटिंग ए चैट मैसेज, व्हाट्सएप का मैसेज इसको लिखिए, पूछने से घबराओ मत। जब हम पूछते हैं तभी हमारे माइंड में चीजें क्लियर होती हैं, और अगर हम नहीं पूछेंगे तो क्लियर भी नहीं होंगी। तो मुझे लगता है यू आर नाउ वेरी मच एम्पावर्ड पीपल। अपने ड्रीम्स को मरने मत दो, उसको जीवित रखो। जीवित रखना ड्रीम्स को बहुत जरूरी है। और मैं इस पे मानता हूं कि हर आदमी जो इस धरती पर है उसके पास ह्यूज पोटेंशियल है। छोटा पोटेंशियल नहीं है, बहुत बड़ा पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को हम ना 1% भी इस्तेमाल नहीं करते, और इसीलिए हम फिर समझते रहते हैं कि हमसे होगा नहीं। इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम ना रास्ते में रुक जाते हैं रेस में हिस्सा लेने से। आपको थोड़ा सा डिटर्मिनेशन रखनी पड़ेगी, 1.5-2 साल स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और उस स्ट्रगल के बाद जो है ना रिजल्ट जिसको बोलते हैं ना आंवले के खाने के बाद स्वाद जो है वो बाद में पता लगता है। तो वो स्वाद आपको बाद में आएगा। अभी तो आप सिर्फ वो कड़वे कड़वे जैसे वो खट्टा जैसा कड़वा जैसा आंवला खा रहे हो, बट बाद में उसके ऊपर जब आप पानी पियोगे ना तब आपको चलेगा क्या मीठा स्वाद आ रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत वर्ष की शुभकामनाएं। और ये यहाँ पे जितने मेरे मित्र हैं, अरुण है, प्रोफेसर अमरजीत हैं, सुरजीत हैं, ये हमारी आपकी प्रिंसिपल है, वो भी मेरी स्टूडेंट रही हुई है शिमला में। तो ये सब एग्जाम्पल हैं कि कैसे डिटर्मिनेशन से काम किया था। मेरे लिए भी इंस्पिरेशन होते हैं। मैं बीच में अरुण से बोल रहा था यार क्या मुझे तो ऐसे फंसा रहा है लेक्चर देने के लिए, यार छोड़ पड़े। नहीं सर, फिर ये मान लिया कि मैं ना आऊं, इतनी इसने मुझे छूट दी। तो मैंने कहा चलो यार मैं तो मेरा इस बहाने रिवीजन जैसा हो गया, आपके साथ बातचीत होगी, और अगर आप इसको इस्तेमाल कर पाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आगे बढ़ो, डरो नहीं। छोटी छोटी चीजों से हमें जूझना पड़ता है लाइफ में। वो हमें शुरू में बहुत भूत की तरह नजर आती है, फिर वो पता लगता है वो हमारा काम का भूत था, उसकी जरूरत नहीं। तो आगे बढ़ो, खुश रहो, गॉड ब्लेस। Thank you, sir. So thank you very much, sir. I think now Arun. So thank you very much, sir. एक फैन किसी ने खड़ा किया था क्या? किसी ने कुछ पूछना है? Other than physics. Yes. नहीं, okay, it's all right. So, thank you, sir, on behalf of the physics department and all the participants. I thank you from the core of my heart that you have completely described the things from day one to regarding. First of all, you talked about the history of the computer, how it came into existence. मतलब किस तरह से आपने स्ट्रगल किया, मतलब शुरू में कंप्यूटर्स कैसे थे, मेमोरीज कैसी थी, और आज हमारे हर एक के हाथ में एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि बड़ा अच्छा वर्क स्टेशन हमारे हाथ में है लैपटॉप की फॉर्म में, और जिसको हम कैरी कर सकते हैं, कहीं पे भी काम कर सकते हैं। अच्छा बैटरी बैकअप है इन सिस्टम्स का, और देन यू स्टार्टेड विद द श्रोडिंगर एंड देन फाइनली आज आपने डेंसिटी फंक्शन फील्ड को बड़े अच्छे से बताया। आई थैंक यू सर। I'm logged out now. Thank you.